Assalamu alaikum everyone. Let's continue with the products of electrolysis part. Here in this part we'll discuss about electrolysis of dilute sulfuric acid and we'll discuss some more examples of electrolytic reactions. In previous session we have gone through the electrolysis of molten sodium chloride and electrolysis of aqueous sodium chloride. वहाँ पे हमने देखा है कि मोल्टन फॉर्म में लेने के बाद प्रोडक्ट अलग मिलते हैं और एक्वियस सोडियम क्लोराइड लेने के बाद प्रोडक्ट अलग मिलते हैं, राइट। उसी तरह अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। Electrolysis of dilute sulfuric acid. That is H2SO4 aqueous. Now when you talk about sulfuric acid solution, it contains hydrogen ions and sulfate ions. जब ये dissociate होगा 2H plus and SO4 2 minus, and as it is an aqueous solution, again dilute solution, water also will be acting as the electrolyte, so partially dissociates to produce H plus and OH minus. Now when you carry out this electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrodes, inert electrode यूज करके अगर आप electrolysis carry out करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं कैटायन दोनों से आपको जो है H प्लस ही मिल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। डेफिनेटली कैटायन H प्लस है, यही कैथोड के पास जाके डिस्चार्ज होगा। एनोड के पास क्या होगा, आनायंस जाते हैं। अब दो आनायंस है, सल्फेट है और OH माइनस आयन, राइट। So which of these two will be discharged at anode? We have to check, right? So in electrolysis of the sulfuric acid, what happens is, suppose this is cathode and this is anode. At cathode, only hydrogen ions are there. So hydrogen ions H plus 2 electron, it becomes H2 gas. तो कैथोड के पास क्या होता है, ये रिएक्शन होगा, hydrogen gas will be liberated at cathode, okay, whereas at anode oxidation takes place. अब ऑक्सीडेशन होने के लिए यानी कि पार्टिसिपेंट्स जो है OH माइनस और सल्फेट आयन, दोनों का अगर आप डिस्चार्ज पोटेंशियल चेक करेंगे तो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का कम है, राइट। तो जिसका भी डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो यहाँ पे एनोड के पास डिस्चार्ज हो जाएंगे, ओके। या फिर SRP वैल्यूज की अगर बात करते हैं तो ये OH माइनस आयन, that is you get it from water and it produces O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए वैल्यू हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, इट वाज 1.23 वोल्ट। वही सल्फेट के लिए SO4 2 minus, it produces S2O8 2 minus plus 4 electron, 1.96 वोल्ट। तो SRP वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल या EMF जिसका कम होता है वो एनोड के तरफ डिस्चार्ज होगा। तो दिस विल बी द रिएक्शन प्रिफर्ड एट anode, means OH minus ions are discharged at anode which will produce oxygen gas, right? So this will be the reaction taking place at anode between OH minus and sulfate ion. Reason क्या है इसका, due to lower discharge potential of OH minus ion, it is discharged at anode, right?
or when you compare the E naught values of these two reactions, lower E naught value is preferred, right? अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट के बदले कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तब ये रिएक्शन होगा। डाइल्यूट में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है एनोड के पास, और कॉन्सेंट्रेटेड में ये पर सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होने के चांसेस है, दैट इज पर सल्फेट आयन विल बी फॉर्म, दिस रिएक्शन विल बी टेकिंग प्लेस एट एनोड, right? Now with respect to this dilute sulfuric acid reaction, here at anode this reaction takes place, right? तो overall reaction अगर आप देखेंगे, H2SO4 hydrogen ions are converted into hydrogen gas. They are given out at what? Cathode. Oxygen gas is formed at anode. एक मायने में ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर ही हो रहा है। अब बचता है सोल्यूशन में सल्फेट आयन, और उसको बैलेंस करने के लिए कैटायंस कौन से रहेंगे? H प्लस आयन्स, राइट? सो दिस रिएक्शन गोज ऑन। So finally what happens is, when you carry out this process continuously, hydrogen gas will be escaping at cathode and oxygen gas will be liberated at anode. Later on, last you will be left out with acid, means solution remains acidic. जितना हाइड्रोजन लिबरेट होना हो जाएगा, बाकी का जो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म में constant sulfuric acid will be remained in the container. What happens is, whatever water part was there, it will escape out in the form of hydrogen gas and oxygen gas, right? तो इस प्रोसेस को हम और एक भी नेम दे सकते हैं, electrolysis of dilute sulfuric acid और electrolysis of acidified water. Okay, so remember the products. During electrolysis of dilute sulfuric acid, hydrogen gas is liberated at cathode and oxygen gas is liberated at anode, and the solution remains acidic. Next example लेते हैं, electrolysis of copper sulfate solution using platinum electrodes, inert electrodes use करेंगे। Okay, now check करो, copper sulfate aqueous, right? Aqueous copper sulfate solution will take using platinum electrodes. Now again copper sulfate dissociate होगा Cu2 plus plus SO4 2 minus फॉर्म में, राइट? एक्वियस सोल्यूशन है तो वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट होके H प्लस फॉर्म करेगा और OH माइनस फॉर्म करेगा। जस्ट अभी हमने देखा है आनायंस OH माइनस और SO4 2 माइनस में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। OH minus ion is having lower discharge potential, so it will be discharged at anode, right? Means it will give out oxygen gas. Because of the discharging of OH minus ions, you will be getting oxygen gas liberated at anode. अब रही बात कैथोड के पास, प्रीवियस एग्जाम्पल में दोनों कंपाउंड से H प्लस आयन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉपर सल्फेट से आपको Cu2 प्लस मिलेगा और वाटर से H प्लस मिलेगा। अब दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगा, कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा। कैथोड की जब हम बात करते हैं तो
SRP वैल्यू जिसका ज़्यादा है वो डिस्चार्ज होता है, या फिर लो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों का अगर आप SRP वैल्यू कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन SRP वैल्यू 0 वोल्ट, कॉपर SRP वैल्यू 0.34 वोल्ट. So who will win the race? Whose SRP value is larger at cathode? Remember at cathode SRP वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ओके या फिर नॉर्मली डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो SRP वैल्यू इसका ज़्यादा है तो ये डिस्चार्ज होगा, या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है, H प्लस से कंपेयर करने के बाद इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है तो यही डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। So at cathode what happens? Cu2 plus, it will be gaining electrons and becoming Cu. ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर मेटल बन के डिपॉजिट होते जाएगा। This reaction takes place at cathode. At anode what happens? H2O changes to oxygen gas, forming hydrogen ions, giving out electrons, right? तो बैलेंसिंग वगैरह कर लो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। सो द रिएक्शन विल बी व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड, Cu2 plus 2H2O, it will be giving you copper at cathode, oxygen gas at anode। अब सोल्यूशन में क्या बचता है? ये 4H प्लस यहाँ लिखता हूँ, कॉपर आयोन्स के साथ जो सल्फेट आयोन थे वो बच जाते हैं, सल्फेट आयोन्स SO4 2 minus, as I am taking here 2 Cu2 plus, you will be having 2 SO4 minus, तो ये दोनों कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, both of them will combine and form sulfuric acid, means we have not taken any acid over here, right? एसिड कोई नहीं लिया, हम एक्वियस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिए थे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिए थे, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करने के बाद कॉपर मेटल कैथोड के पास डिपॉजिट होगा, एनोड के पास ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। अब सोल्यूशन में जो बचता है H प्लस आयोन और सल्फेट आयोन दोनों कंबाइन होके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, राइट। मीन्स द सोल्यूशन बिकम्स acidic at the end of electrolysis process, okay। when you carry out this electrolysis, finally solution becomes acidic, okay। So this is the electrolysis of aqueous copper sulfate solution using platinum electrodes। अब इलेक्ट्रोड को चेंज कर देंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, whereas active electrodes they take part in redox reaction। Let's see। Electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrodes, using copper electrodes। Aqueous copper sulfate, again as usual, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा Cu2 प्लस SO4 2 माइनस फॉर्म में, H2O weakly dissociates to produce H plus and OH minus, right। Again when you check out here, cations H plus है और Cu2 plus है और anions OH minus and SO4 2 minus।
Okay, now at cathode when you talk about Cu2 प्लस है, H प्लस है, और कैथोड इलेक्ट्रोड जो है कॉपर है. At cathode what are the availabilities? Cu2 plus, H plus and copper metal itself, right? तो यहाँ पे एज यूजुअल जिसका SRP वैल्यू कम है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होना है, तो ये तो अब रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ये कॉपर आयन फिर से कॉपर मेटल बन जाएगा. द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड इज द स्पीशीज विद हायर SRP वैल्यू. तो Cu2 plus 2 electron becomes Cu, राइट. तो कॉपर के अलावा आप यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड सिंगल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन एनोड के पास थोड़ा चेंज रहना है. ओके, तो कैथोड के पास ये रिएक्शन होगा फिर से, Cu2 plus will be changed to Cu. At anode what happens? Let's see. At anode we have OH minus, SO4 2 minus and copper metal electrode, right? यहाँ पे क्या देखना रहता है हमको? जिसका SRP वैल्यू कम है वो देखना रहता है. तो SRP वैल्यू जो है OH माइनस का हमने देखा है इससे पहले 1.23 होता है, इसका 1.96 है और इसका 0.34 है, राइट. ये बेसिस पे फिर से हम इसको प्रिफर करेंगे, या फिर ये जो सल्फेट आयन्स रहते हैं ये रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट होते हैं. they make copper to undergo oxidation. They oxidize copper metal to copper ions. So these sulfate ions will attack copper metal and convert into Cu2 plus. So reason what you can give at anode is sulfate ions attack on copper metal and convert into copper ions, or when you compare the SRP values, copper is having the lowest SRP value when you compare with others. That's why it undergoes oxidation at anode. So it dissolves and forms Cu2 plus ion. तो anode के पास क्या होगा? Cu changes to Cu2 plus by the loss of 2 electron. This is the reaction taking place at anode. Overall reaction देखो आप, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कॉपर आयन कैंसिल, तो बचा क्या? रिएक्शन कॉपर से कॉपर, कॉपर से कॉपर, कॉपर डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर ही फॉर्म हो रहा है. तो ये फेनोमेना, ये प्रोसेस को जो है कंसिडर करके यही पूरा कॉन्सेप्ट हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में अप्लाई करते हैं. रिफाइनिंग ऑफ कॉपर ऑलरेडी मेटलर्जी चैप्टर में हम पढ़े हैं. तो वहां पे क्या करते हैं, एनोड जो होता है, एनोड डिसॉल्व हो रहा है, राइट. कॉपर मेटल कॉपर आयन बन रहा है. ये जो कॉपर रहता है इसको हम इम्प्योर कॉपर लेते हैं. जिसको प्यूरिफाई करना है वो कॉपर को हम एनोड बनाते हैं, थिक एनोड लेते हैं. और जो ये कैथोड रहता है, कैथोड के पास क्या होगा? कैथोड को भी हम कॉपर मेटल लेना रहता है, या फिर कोई भी आप दूसरा इलेक्ट्रोड भी यूज़ करो, लेकिन आपको रिफाइनिंग के टाइम पे कॉपर ही चाहिए. फिर आप दूसरा मेटल लेंगे तो और मिक्सअप हो जाएगा. तो प्योर कॉपर आपको यहाँ लेना रहता है, और थिन फॉर्म में. only we need to have an electrode, that's why we'll take thin pure copper strip as cathode. तो हो रहा क्या है? ओवरऑल रिएक्शन इम्प्योर कॉपर से आपको प्योर कॉपर मिलते जाएगा. ये कॉपर, इम्प्योर कॉपर, इसमें से जो कॉपर पार्ट है कॉपर आयन बन के सोल्यूशन में आएगा. यही कॉपर आयन्स कैथोड के पास आके प्योर कॉपर बन के डिपॉजिट होते जाएंगे. सो ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इम्प्योर कॉपर टू प्योर कॉपर, राइट. So this is the change when you use copper electrodes. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो अलग प्रोडक्ट्स, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो आपको अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट. Same way, if I carry out electrolysis of silver nitrate using platinum electrodes, that time again Ag plus NO3 minus,
और वाटर से क्या मिलेगा आपको, H प्लस और OH माइनस। ये दोनों अवेलेबल कहाँ पे होंगे आपको, कैथोड के पास। और इन दोनों में से अगर आप इनका SRP वैल्यू चेक करते हैं, सिल्वर का SRP वैल्यू है 0.8 और हाइड्रोजन का है 0। तो प्रेफर किसको करना है आपको, जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है। तो कैथोड के पास क्या होता है, सिल्वर आयन डिस्चार्ज हो जाते हैं, they become silver metal and they get deposited on the electrode. Why? Because SRP value is large or discharge potential of silver ion is lower than H plus, right? एनोड के पास क्या होगा, एनोड के पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, तो यहाँ पे ये OH माइनस आयन, ओके, OH माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल नाइट्रेट से कम है, तो ये OH माइनस आयन ऑक्सीजन फॉर्म करके लिबरेट होगा एनोड के पास। Between these two, OH minus ion is having lower discharge potential, so it will be liberated at anode in the form of oxygen gas, right? So overall reaction अगर आप देखेंगे, AgNO3 aqueous when it is electrolyzed, you will be getting silver metal at cathode and oxygen gas will be given out at anode. बचता क्या है सोल्यूशन में, अब नाइट्रेट आयन्स बचेंगे और थोड़े H प्लस आयन्स रहेंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाता है, सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक, अगेन सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। तो जब भी आप कोई सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कर रहे हैं, जैसे कि मेटल सॉल्ट्स का, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट या फिर कॉपर सल्फेट, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स का जब इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कर रहे हैं, तब डिस्चार्जिंग होने के बाद जो सोल्यूशन बचता है एसिडिक बन जाता है, देयर सॉल्यूशंस बिकम एसिडिक। If I use silver nitrate solution, using silver electrode, यहाँ पे वही होगा जो कॉपर में हो गया था, AgNO3 से आपको क्या मिलेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। वाटर से क्या मिलेगा आपको, H प्लस OH माइनस, राइट। अब ये दोनों है कैथोड की तरफ जाएंगे। अब देखें प्रीवियस पार्ट में दोनों में कैटायन Ag प्लस और H प्लस में Ag प्लस डिस्चार्ज हो जाता है, Ag प्लस प्लस 1 electron becomes Ag. This reaction takes place at cathode. और एनोड की तरफ अगेन डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का कम है, तो ये इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा और ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, इसको भी आपको काउंट करना है रिडॉक्स रिएक्शन में। तो 1 2, अब 3 जब लेंगे, तो 3 जब लेंगे तो इसका ई नॉट वैल्यू, अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका SRP वैल्यू सबसे कम हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट। या फिर नाइट्रेट आयन्स एनोड के तरफ जाके ये सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट होते हैं, नाइट्रेट आयन आर अटैक्ड, they attack silver electrode and they convert it into silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्म होगा, ये Ag जाके Ag प्लस बनेगा, राइट। तो दोनों मीनिंग वही होते हैं, आप दो रीजन दे सकते हैं, नाइट्रेट आयन अटैक सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट वेयर Ag changes to Ag plus, और due to lower SRP value of silver electrode it undergoes oxidation, राइट। तो एनोड के पास क्या होगा, चांस अब ना नाइट्रेट को मिलेगा ना OH माइनस को मिलेगा, अब मिलेगा चांस सिल्वर इलेक्ट्रोड को, इट चेंजेस टू Ag प्लस बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
So again the reaction is Ag to Ag. ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम सिल्वर को प्योरीफाई करने के। इसको आप इम्प्योर ले लो, यहाँ पे आपको जो है कैथोड के पास प्योर सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, कॉपर क्लोराइड, cupric chloride solution using platinum electrode. If you take again CuCl2 changes to Cu2 plus 2Cl minus, H2O changes to H plus OH minus। फिर से कैटायन है ये दोनों, कहाँ जाएंगे? कैथोड के पास। कौन डिस्चार्ज होगा अभी? जिसका SRP वैल्यू ज़्यादा है या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। SRP वैल्यू Cu2 प्लस का ज़्यादा है तो ये डिस्चार्ज होगा कैथोड के पास। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। एनोड के पास अब मेटल इलेक्ट्रोड तो इनर्ट इलेक्ट्रोड से ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब दोनों के बीच में OH माइनस और Cl माइनस। OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल और Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर आप चेक करेंगे तो ये डिस्चार्ज होगा अभी, बिकॉज इट इज हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन OH माइनस। या फिर SRP के बेसिस पे लोअर SRP होना है। इसका SRP वैल्यू 1.23 वोल्ट लिखते हैं और इसका 1.36 वोल्ट है। जब आप ये कंसिडर करेंगे तो ये होना चाहिए, लेकिन ओवर पोटेंशियल फैक्टर, रिमेंबर ओवर पोटेंशियल फैक्टर वी हैव डिस्कस्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड, एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग। ओवर पोटेंशियल फैक्टर के वजह से ये प्रोसेस होने के बजाय क्लोराइड का डिस्चार्जिंग हो जाता है, राइट? सो एट एनोड व्हाट हैपेंस, 2Cl minus become Cl2 by the loss of 2 electron. Okay, so in this way you will get copper metal at cathode deposited and at anode fluorine gas is liberated, and you are left out with water, that is H2O will be remaining as it is in the solution. Okay, so this is the way how we predict the products of electrolysis when you use the different types of electrodes, inert and metal electrodes, and when you are using the electrolyte in molten form or in aqueous form. ठीक है? इस ओवरऑल एग्जाम्पल्स में आपको जो है मेन थिंग प्रेडिक्शन करते जाना है, या फिर कैथोड के पास कौन क्या चीज़ लिबरेट हो रही है या डिपॉजिट हो रही है, और एनोड के पास कौन सी चीज़ लिबरेट हो रही है या डिपॉजिट हो रही है, और इसके रीजंस याद रखना है, व्हाई इट इज़ लिबरेटेड एट कैथोड और व्हाई इट इज़ लिबरेटेड एट एनोड। तो रीजंस के लिए आपको मेन थिंग्स क्या याद रखना है? SRP वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है या फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके।